ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਵਾਂ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ। ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਣ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਤਾਂ ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ। 10 ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਸਨ। ਨਹੀਂ, 10 ਸਿਰ ਜਿਤਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। 10 ਸਿਰ ਜਿਤਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਤਦੇ ਤੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਕਿ ਤਪਤ ਰਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਦੇ ਸਨ ਰਸੋਈ ਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਲੱਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਨ ਲੰਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਪੱਖ 'ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਟ। ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਦਮੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਟ। ਸੱਟਾ ਵੱਟਾ, ਦਮੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾ ਵੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦਮੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੋ ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 10 ਸਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ। ਉਹਦੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, 10 ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ 5 ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਵਣ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀਆਂ ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲੰਕਾ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਟ। ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਉਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂ 2 ਦਫਾ,
साल दे साल जलाया जाता है। हैरानगी। पुतला खड़ा कर देंगे, सारा दिन लोकी मत्था भी टेक देन, साडे हिंदू वीर मत्था भी टेकणगे, प्रसाद भी रखणगे। भाई हद हो गई, जिन्हों फूक देना है तो जिहड़ा कहंदे हो वाकई दुष्ट सी ते फिर इहनूं मत्था टेकण दी की मौत। प्राणां विच एहसास है, वेदां दा ज्ञानी सी, शिव जी दा भगत सी। ये भी मैं अर्ज करा, शाम नूं जद राम तीर मारदे ने, जलाण तो पहले राम भी परिक्रमा करदा है उस दी। और लंबी चौड़ी गल है, जद मरण लग्या सी रावण, दम तोड़न लग्या, श्री राम अपने भिरा लक्ष्मण नूं कहंदे ने, जमीन तो एक बड़ा कीमती मनुख उठ के जा रहा है, बड़ियां विचारां, बड़ी सियाणप, बड़ी सूझबूझ, ये भी इहदे नाल चली जाएगी। इहदा आखिरी दम टुटे तो इसदे कोलों कुछ ना कुछ लैके आ। जिस पुरुष दे कोलों राम अपने भिरा नूं ज्ञान लैण वास्ते भेजदे ने, वो मनुख कोई मामूली नहीं सी। गुरु अर्जन देव जी ने उसकी रूपरेखा सामने रख दी है। लक्ष्मण की जैसी तबीयत सी, क्योंकि गुस्से च आके रावण की भैन की नक कट चुकिया सी। ये संत का काम नहीं है नक कटना, तो स्त्री नूं हमेशा लई करूप कर देना। स्वयंवर की प्रथा उन्हां दिनां च आम सी। स्वयंवर, बच्ची अपना वर खुद चुनती सी, ये आम प्रथा सी। सीता ने भी खुद चुनिया सी, द्रौपदी ने भी खुद चुनिया सी। स्वयं वर चुनना है, आप वर चुनना है। समाज की व्यवस्था ऐसी सी। अगां चल के देखा गया कि बच्चियां जज्बे के तहत कई दफा वर की गलत चुनाव कर लेंदियां, जिंदगी च पछताना पैंदा है और बच्चे रुल जाते हैं। स्वयंवर हजारां साल पहले भारत देश नाकाम होकर रद्द कर दिता गया। भी नहीं, बच्ची स्वयं नहीं चुनेगी, सिर्फ इस कोल जज्बे ही होंदे ने, सिर्फ इस कोल भावुकता होंदी है, इहदे कोल दूरदृष्टि नहीं होंदी। स्वयंवर भारत देश फेल होया, स्वयंवर अमेरिका ते यूरोप के देशों फेल हो रहा है। कैलीफोर्निया के डॉक्टर मनजीत सिंह ने मैनू दसिया 87% शादियां कैलीफोर्निया तलाक हो जांदियां, नहीं निभदियां, टुट जांदियां। हालांकि खुद चुनिया होंदा है, खुद शादियां कीतियां, माँ बाप की मदाखलत भी नहीं, समाज की मदाखलत ही नहीं, फिर क्यों नहीं निभदी? सिर्फ फोके जज्बियां के तहत चुनाव होंदा है, जज्बे ठंडे पै गए, तलाक हो गया। एक स्टेट के अंदर, बाकी स्टेटां च नहीं, एक स्टेट के 87% शादियां तलाक हो जांदियां। स्वयंवर हजारां साल पहले भारत विच फेल होया, समाज ने रद्द कर दिता। भाई नहीं, आइंदा बच्ची खुद चुनाव नहीं करेगी, करेगी तो उस पर उंगल उठाएगी समाज, ये बच्ची गलत है। यूरोप देश, अमेरिका, कनेडा का स्वयंवर फेल हो रहे हैं। पर रावण ते श्री राम दे समय स्वयंवर आम सी। स्वरूपनखा ने लक्ष्मण नूं चुन लिया सी, वरमाला पहनाण लगी, लंबी चौड़ी कथा है, उन्हें गुस्से च उहदी नक कट दिती। ते स्वरूपनखा उन्हां दिनां च शरीर दे अंग ते मन दे सुभाव दे मुताबक नाम रखे जाते सन। स्वरूपनखा उहदे नैन नक्श बहुत अच्छे सन। ते लक्ष्मण ने कहा नक करके ही तू खूबसूरत लगती पई है, बहुत मैं ही कट देना, कट दी। एशिया का इलाका ऐसा है, होर कुछ बर्दाश्त कर लवे, लेकिन भरा भैन की तोहीन ते भैन की गल नहीं बर्दाश्त करता। रावण की भैन सी, आम बंदा नहीं बर्दाश्त करता, वो ते राजा सी, बदले की भावना ते आ गए। ठीक है, सियाणा सी, विद्वान सी, शिव जी का भगत सी, पर भैन की नक कट्टी। इतिहास के निक्के पहलू मैं थोड़े सामने रखे न। लक्ष्मण गया ज्ञान लैण वास्ते, रावण के सिर दे भार खड़ा होया।
और कहंदे ब्राह्मण देवता सुनिया थोड़े कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है हर पहलू दी, जो कीमती तो कीमती विचारधारा होवे तुसी जा रहे हो जगत तो दस के जाओ। रावण ने अख जरूर खोली है और घृणा भरी मुस्कुराहट भी चेहरे ते आई, फिर अखां बंद हो गई। लक्ष्मण वापस आ गए, राम नूं कहंदे भगवन वो तो बोलदे ही नहीं। पता है राम ने की आख्या, तैनूं बुलाण दी जाच नहीं आई, तैनूं ज्ञान लैण दा ढंग नहीं आया, जा वो विद्वान है, शिवजी दा भगत ਉਹਦੇ कदमां दे खड़ा, ਉਹਦੇ पैरां ते मत्था टेक, फिर हथ जोड़ के मंग कर। इंज ज्ञान दी मंग करी दी। ਜਿਹਦੇ कदमां दे च राम लक्ष्मण नूं खड़ा करना चाहते ने ते जिसदे कोलों ज्ञान लेना चाहते ने, वो मनुख मामूली नहीं हो सकता, मामूली नहीं हो सकता। अद कि इस तरह किया ते रावण ने जिहड़ी आखिरी गल की, लक्ष्मण मनुख की जिंदगी च कल कतई नहीं आउंदा, जो करना है अज कर, जो जरूरी काम होवे कदी मुलतवी ना करी, पोस्टपोन ना करी, कल ते ना छुट्टी। जो गैर जरूरी काम होवे मुलतवी कर दें, जो जरूरी होवे भुल के भी मुलतवी ना करें, जो पुण्य होवे उन्होंने कदी मुलतवी ना करें, जो पाप होवे उन्होंने कल ते छोड़े। गुरु अर्जन देव जी का वाक जिन्हों का पुरब मना रहा, पातशाह कहते न बिलंब धर्मं बिलंब पापं। जब कोई शुभ संकल्प अंदर पैदा होवे, साहब कहते बिलंब नहीं करनी, देरी नहीं करनी। क्यों देरी करेगा, वो जड़ा शुभ संकल्प है कमजोर हो जाएगा, फिर तो वो नहीं कर सकेगा। बिलंब पापं, अगर कोई पाप का संकल्प पैदा होया है, देरी करें ताकि वो कमजोर हो जाए। लेकिन होंदा कि ये गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, चंगियां आईयां आलक करे बुराई होवे सेर। बुरा संकल्प पैदा होया बंदा तत छिन करता है, चंगा संकल्प पैदा होंदा सोचता कल सोचांगे परसों सोचांगे। इस तरह मनुख रोज दी रोज बुरा होंदा जा रहा है, चंगियाइयां तो बचता जा रहा है, क्योंकि चंगियाइयां नूं पोस्टपोन करता है। चंगियाइयां आलक करे बुराई होवे सेर, ये महान ज्ञान रावण ने लक्ष्मण नूं दिता है। हुण प्रश्न खड़ा होवेगा, हार क्यों गए? भारत दे इतिहासकार कहते ने रावण राम तो नहीं हारे, अपने भरा तो हारे न, विभीषण तो। सारे सीक्रेट सारा राज भरा ने दस दिता, विभीषण ने। और चाणक ऋषि कहते ने मनुख दुश्मन दे वार तो बच सकता है, भरा दे वार तो नहीं बच सकता। क्यों? भरा नूं सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। हो सकता है दुश्मन का वार खाली चला जाए, क्योंकि उन्होंने बहुता ज्ञान नहीं है। भरा दा वार खाली नहीं हो, इस वास्ते आम दुश्मनों के इतनी दुश्मनी नहीं पाई जाती, नहीं देखी जाती। कई दफा भरावां दे जो दुश्मनी देखी जाती, बड़ी भयंकर। विभीषण ने सारे राज दस दिते हैं, विभीषण भरा सी रावण का, सारे सीक्रेट दस दिते हैं। इस वास्ते भारत दे चोटी दे इतिहासकार कहते ने रावण हारे है भरा दी मार तो भारत दे बोल प्रचलित ने, घर का बेदी लंका डाले। इतना महान सी ते उन्होंने दुष्ट क्यों आख्या गया? मनुख दी फितरत है, जो हार जाए वो शैतान होंदा है, जो जित जाए वो भगवान होंदा है। कुदरती गल है, सब रबों खेड है, मनुख प्रभावित है। जो जित जाए वो जो है भगवान है, जो हार जाए वो शैतान है। इस तरह ही होया। इस वास्ते आम बंदे करीबन कोशिश करते ने असी जगत दे च जेतू बणीए। तो जेतू तां बन सकते हैं कोई शक्ति होवे, ताकत होवे। मनुख शक्ति तो प्रभावित है। हुणे मैं अर्ज की सी, परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। हुण शक्ति दो तरह की होंदी है। एक तो मनुख बाहरों शक्तिशाली है,
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਤਾ ਸਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।